हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 38 अपने पाइथन क्लास का। माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज डे 38 ऑफ आवर पाइथन क्लास। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है वो डे 37 तक रिकॉर्डिंग देख के यूट्यूब से कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। द पीपल हु हैव ज्वाइंड न्यू हेयर और नॉट completed yet can watch the recording up to day 37 on the YouTube and watch live after next class. Let's move on today class. So we will learn today about Python try and except. The try block is used to test a section of code for errors. If you encounter any error, you can check that from try block. The except block is used to handle any error. When you found any error or it's any error occurred in try block, you can handle that error inside except block. The else block is executed if no error are encountered in the try block. So this is try block, and if you encounter any error, you can handle those error in this except block, and if you do not encounter any error, the else block will be executed. The finally block runs code regardless of whether an error occurred or not. So in both cases, if this finally block is present, it will run. When an error, also known as exception, occurs, Python typically stop the execution and display the error message. However, you can handle these exception using try statement. So आज हम समझेंगे पाइथन में try और except के बारे में। try block को आप यूज कर सकते हो और इसमें अगर कोई एरर एनकाउंटर होता है तो इस सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें कोई एरर होता है तो उस एरर को आप एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल कर सकते हो कि उस एरर के केस में आपको क्या करना है। अगर कोई एरर इसमें नहीं आता है तो उसे आप एल्स ब्लॉक से हैंडल कर सकते हो। एल्स ब्लॉक के अंदर आप वो कोड लिख सकते हो जब कोई एरर नहीं है तब आपको एग्जीक्यूट करना हो तो उसे एल्स ब्लॉक में लिखा जाता है। फाइनली ब्लॉक जब आप ऐड करते हो तो वो एरर आए या फिर ना आए, दोनों ही केस में ये ब्लॉक एग्जीक्यूटेड होता है। जब कोई एरर या जिसे हम एक्सेप्शन के नाम से भी जानते हैं आता है तब पाइथन का प्रोग्राम जनरली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है वहीं पर और एक एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देता है। तो जब कोई एक्सेप्शन आता है आप इस एक्सेप्शन को ट्राई स्टेटमेंट के थ्रू चेक कर सकते हो। एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है? सो हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन? This is a normal print statement. I am printing here a variable called number, and number is not defined anywhere. Okay, when I print this number, it will generate an error because the variable number is not defined. Okay, when I put my cursor here, it is also telling me unresolved reference number, so it cannot find number in local or global variable scope. Okay, so when I run the program, you can see the output. It's telling me on the line number 20, which is this line number where print statement is written. So on the line number 20, it's telling me there is a name error. So name telling me for the variable. So the variable name is number is not defined anywhere. What this error is try to saying to me, the variable number is not defined and I am using the variable number here without defining it. Okay. So how can you handle error? I am commenting this line and enabling these lines below and putting this thing in a try and except block. So this is without handling error. Now we are handling the error. So inside my try block, you can put this thing. So with handling error, I am using this try block and I can see this print statement with same variable. So when I am using the same variable, I have still not defined the variable number anywhere and I am handling this error. So I know the error will be encountered here inside the try block and I can handle this error in except block. So inside except block I am writing a print statement. This is telling me an error occurred. So an error encountered here and I can handle and I can provide any message I want to the user. When I run the program, you can see the output. The message I have provided is printed over there in my console. So I hope this is clear to you. अब हम समझते हैं एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। अभी मैं कोई एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ और मैंने एक नंबर नाम से वेरिएबल ले लिया है। इस नंबर नाम के वेरिएबल को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। नंबर जो वेरिएबल है ये मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है और क्योंकि मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया तो इसमें एरर आएगी। जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो रन करने पे हम देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कंसोल में लाइन 20 के अंदर जहाँ पर मैं प्रिंट नंबर का यूज कर रहा हूँ वहाँ पे एक नेम एरर एग्जीक्यूट हुआ है। ये जो नेम एरर है, जो मेरे वेरिएबल का नेम है नंबर, वो डिफाइन नहीं है। तो इस एरर का पूरा मतलब ये है कि लाइन नंबर 20 में जो एरर है मेरे पास नंबर नाम का वेरिएबल वो कहीं भी डिफाइन नहीं है और क्योंकि डिफाइन नहीं है इसलिए वहां पे एरर आ गई। उसे नहीं पता ये नंबर वेरिएबल क्या है और इसका क्या करना है। सो एरर हैंडलिंग के साथ इसको समझते हैं। जब हम इसी चीज को ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखते हैं तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने मेरा पूरा कोड लिखा जो मुझे यहाँ चेक करना था और अगर कोई एरर एग्जीक्यूट होती है,
कोई एरर आती है, ठीक है, तो एरर आने पर यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, जो कि मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रखा है और इसमें लिख रखा है एन एरर ऑक्योर्ड, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो प्रिंट होके आ जाएगा अगर यहाँ पे कोई एरर होती है तब। क्योंकि हमें पता है हमने इस नंबर वेरिएबल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे एक एरर है, तो ये लाइन प्रिंट होके आनी चाहिए और इसे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल किया जा सकता है। जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हम यहाँ देखते हैं ये लाइन प्रिंट होके आ गई है जो मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखी थी। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब समझते हैं मैनी नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट मैनी एक्सेप्शन। सो यू कैन इंक्लूड मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ एरर सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड for a particular type of error. So assume we are defining multiple type of error. So we are taking our same example previously. I am defining my code inside try block, and if error is encountered, so I am defining multiple except block here. So what is first except block is doing? It is saying it is type error. So what is type error? Type error is like I want a particular type of thing, and that is not like I want an integer and that may be a string. So this is type error. In second case, name error. So name error is the same thing where a variable is not defined. So I am printing the variable number is not defined. So this is a number, the name of the variable. So it is the not defined. And except these two, I am handling all the error inside this third block, except block. So I am not defining the type of error here, and I'm telling whatever other error encountered. So just print this thing, something else went wrong. So when I run the program, you can see the variable number is not defined. This error is encountered because variable is not defined. So I hope this is clear to you. अब हम समझते हैं मैनी एक्सेप्शन के बारे में। आप इसमें मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन कर सकते हो अलग अलग एरर को हैंडल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई पर्टिकुलर एरर आएगा तो आपका पर्टिकुलर ब्लॉक का कोड ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं सेम एग्जाम्पल को ले लेता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल नंबर जो डिफाइन नहीं है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ ट्राई ब्लॉक में, और यहाँ पर एक्सेप्ट से 3 ब्लॉक डिफाइन किए हैं मैंने। सबसे पहला टाइप एरर, इसमें मैंने प्रिंट किया नंबर इज नॉट एन इंटीजर। टाइप एरर का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइप की चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो वहाँ पर नहीं है। लाइक मैं इंटीजर चाहता हूँ और यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो ये वाली एरर आएगी। सेकेंड में मैंने डिफाइन किया है नेम एरर को। नेम एरर वही एरर है अगर कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया है वेरिएबल नंबर इज नॉट डिफाइंड। सो नंबर नाम का जो वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं है, हमारे केस में अभी यही है। और तीसरा मैंने चेक किया है अगर ऊपर दोनों मैच ना हो, जहाँ में मैंने पर्टिकुलर टाइप डिफाइन किया है एरर का, इसमें मैं कोई टाइप डिफाइन नहीं कर रहा हूँ और बाकी सारे एरर यहाँ हैंडल कर रहा हूँ, तो इसमें आ जाएगा समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग, समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पर बाकी सारे एरर हैंडल हो गए। तो प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं और हमारे पास आया वेरिएबल नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये वाली चीज डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो ये नेम एरर आ गया हमारे पास में। और आई होप ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको वो क्लियर होगी यहाँ तक। आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एल्स पार्ट। सो द एल्स कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड that runs only if no error occurs. So inside try block, if there is no error, so the handling block except is not enough, and if you want to run something else without any error, so there is else block. So when you have no error inside your try block, then this part will be executed, and in this case we are printing hello. So no error and this block will not run, and else block will run because there is no error. So when I run the program, you can see this print hello from the try block, and this is nothing went wrong from the else block. So I hope this simple thing is clear. When no error is there present, then else block will run. अब हम समझते हैं else block के बारे में। else कीवर्ड को यूज किया जा सकता है else block को डिफाइन करने के लिए, और ये तब एग्जीक्यूट होता है जब वहाँ पे कोई एरर ट्राई ब्लॉक में नहीं होती है। सो ट्राई ब्लॉक में हमने एक कोड डिफाइन कर दिया, एक्सेप्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कोड करेक्ट है, यहाँ पे हमने हेलो प्रिंट किया है। और जब एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा मतलब कोई एरर नहीं है, तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा या एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सबसे पहले हेलो प्रिंट हुआ है जो कि ट्राई ब्लॉक से आया है। उसके बाद क्योंकि कोई एरर नहीं आया तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और एल्स ब्लॉक अगर प्रेजेंट है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जब कोई एरर नहीं आएगा तब। तो यहाँ पर नथिंग वेंट रॉन्ग जो कि हमने एल्स ब्लॉक में डिफाइन किया है, प्रिंट किया है, वो प्रिंट हो चुका है। सो आई होप कि यहाँ तक एल्स ब्लॉक तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। So now we are looking on finally block. The finally block, if included, will always execute whether an error occurs in the try or block, in the try
block or not. So when you include finally block, this finally block, it is always executed. Okay, so if there is any error occurred inside try block or not, it doesn't matter for this finally block. If you included this block of code, it will always execute it. Okay, so it is checking. We know there is an error because x is not defined here, and something went wrong is printed definitely because error occurred. So finally block will also be printed because it is not dependent on error, try, expect or else block. It is always executed. So we can run the program to check it. When we run the program, you can see something went wrong is written there because this except block runs because of an error inside try block, and finally block also executed. It is saying that try except is finished, whatever we written here. So अब हम समझते हैं फाइनली ब्लॉक को. फाइनली ब्लॉक जो होता है, अगर आप उसे इंक्लूड करते हो तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे कोई एरर आए या फिर ना आए ट्राई ब्लॉक के अंदर. तो यहाँ पर x नाम से एक वेरिएबल है, वो डिफाइन नहीं हुआ है. क्योंकि ये वेरिएबल डिफाइन नहीं हुआ है तो एक्सेप्ट से ये एरर को कैच कर लेगा, हैंडल कर लेगा और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा. और ये हैंडल होने के बाद फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा. अगर आपने फाइनली ब्लॉक डिफाइन किया है तो चाहे कोई एरर आए चाहे ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही एग्जीक्यूट होता है. सो प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक एरर है. तो एक्सेप्ट ब्लॉक में ये समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट हो गया है, और उसके अलावा फाइनली ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें लिखा है द ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड. सो आई होप ये आपको क्लियर होगा. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम समझेंगे. सो वी आर लुकिंग फॉर अनदर एग्जाम्पल हेयर. दिस कैन बी यूजफुल टू क्लोज object when clean up resources. This is simple example, so you do not need to understand file handling here. We will learn about file handling in later sessions, but we are executing a simple example here. So this is the try block, this is our code. So code is trying to open a file. Under the try block there is another try and accept block. So the file is try to open, and this is stored inside a variable. When variable executed and try to write some text inside it after opening the file. So if there is an error, it is written something went wrong when writing to the file. Okay, and finally file is closed. So finally is used for closing the file. We are learning how to close object and clean the resource. So whenever the resource is not useful anymore, whether it is giving error or not, so finally block is working here, and it is the best example of finally block to execute this thing. Okay, so finally block is closing the file whether an error encountered or not. So inside this except block, this is written something went wrong when opening the file. So I'm running the program, and you can see this error encountered because there is no file present with this name. We will learn more about how to open file and write on files in our later sessions. So you do not need to understand deeply this thing here. This is for just demonstration of finally block, how useful it can be. सो अब हम समझते हैं कि फाइनली ब्लॉक ज़्यादा यूजफुल कैसे हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट को कैसे क्लोज किया जाता है और प्रोसेस क्लीनअप कैसे कर सकते हैं हम रिसोर्स को बचाने के लिए. तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल को समझते हैं फाइल हैंडलिंग वाले, बट आपको इस पार्ट को समझने की जरूरत अभी नहीं है कि कैसे फाइल को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या उसे यूज में लेंगे. इसे हम अपने बाद के सेशन में समझेंगे. यहाँ पर सिर्फ इस एग्जाम्पल का मीनिंग यही है कि जब फाइनली ब्लॉक में हमेशा फाइल को क्लोज करेंगे हम, जब भी ऐसी जरूरत हो. तो यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक है जहाँ पर हमारा कोड है, और एक्सेप्ट ब्लॉक है. अगर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, कोई एरर आती है, तो ये प्रिंट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने एक फाइल ओपन कर लिया है और इसे एक वेरिएबल में ले लिया है. अब अंदर ट्राई एक्सेप्ट का एक और ब्लॉक है, तो उसमें हमने फाइल को ओपन करने की कोशिश की. अगर फाइल ओपन नहीं होती है तो हमने ये बता दिया कि फाइल ओपन नहीं हो रही है और उसमें राइट नहीं हो सकता. तो फाइल राइट नहीं होती है, उसके बाद में हमें फाइनली में हमने फाइल को क्लोज कर दिया. तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब फाइल में कोई एरर आए चाहे ना आए, जब आप उसको ओपन करने के लिए खोल रहे हैं तो उसे बंद करना भी जरूरी है. तो ये एग्जाम्पल सिर्फ इसके लिए है कि इस फाइल को बंद किया गया. ओके, हम फाइल हैंडलिंग वाले सेशन को बाद में समझेंगे. जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारे पास अभी ये एरर आती है कि कुछ एरर आ गई है जिससे फाइल ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये एरर हमारे पास आई. सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी. अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं. अब हम समझेंगे कि एक्सेप्शन कैसे रेज करते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू रेज एन एक्सेप्शन. सो एज अ पाइथन डेवलपर यू कैन रेज एन एक्सेप्शन व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन occurs. टू रेज एन एक्सेप्शन, use the raise keyword. Raise an error and stop the program if x is lower than 0. So I am defining a variable x here and assigning a value into it. This is -1. So I am checking if x is less than 0. We know x is 0. So we are raising an error exception. So how can you raise? Use the raise keyword to
and use the exception method. So this is exception method we are using. Number must be 0 or above. So we have given a message, and when we run the program, this exception will be printed. So when I run the program, you can see the error is here and it is telling us raise exception. So number must be 0 or above in line number 100. When I put this number 0 or above like 2 and run the program again, there is no error. So यहाँ पर अब हम समझेंगे एक्सेप्शन को रेज करने के बारे में। तो आपको पाइथन डेवलपर के रूप में ये समझ में आना चाहिए कि जब आप स्पेसिफिक कंडीशन कोई हो उस पर कोई एक्सेप्शन रेज कर सकते हो। तो एक्सेप्शन रेज करने के लिए रेज कीवर्ड का यूज किया जाता है। एक्सेप्शन या एरर रेज करने से प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एक्स की वैल्यू जब 0 से कम हो तो एक्सेप्शन रेज हो जाए। हमने यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया एक्स और उसकी वैल्यू है -1 और हमने यहाँ चेक किया एक्स अगर लेस देन 0 है, जो कि है यहाँ पर, तो एक एरर एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमने रेज नाम का कीवर्ड यूज किया, इसे एक एक्सेप्शन रेज किया जहाँ पे हमने बताया नंबर मस्ट भी 0 और अबव होना चाहिए। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे एरर है तो ये एरर हमारे सामने प्रिंट होके आ जाती है जो हमने रेज किया है, नंबर मस्ट भी 0 और अबव। सो ये एक्सेप्शन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर अगर हम 0 से ज़्यादा कोई नंबर कर देते हैं जैसे कि 2, तो इसको रन करने पर ये एक्सेप्शन चला जाता है, यहाँ कोई एरर नहीं आती है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा यहाँ तक। द रेज कीवर्ड इज यूज्ड टू ट्रिगर एन एक्सेप्शन। You can specify the type of error to raise and provide an custom error message for the user. Raise a type error if x is not an integer. So I am taking a variable here x and assigning a string into it. So checking if not type of x is integer. So if it is not an integer, I am raising an error, type error, and only integer are allowed is written. When I run the program, you can see the exception here. This is the type error and only integer are allowed is written. So when I turn this into an integer, like I am assigning 6 here, 6 is an integer. When I run the program, there is no error anymore. So अब हम समझते हैं कि एरर को आप ट्रिगर कर सकते हो रेज कीवर्ड के थ्रू। आप एरर का टाइप डिफाइन कर सकते हो और रेज कर सकते हो एरर को, और वहां पे यूजर को कस्टम मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर रेज करते हैं, रेज अ टाइप एरर इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। यहाँ पे जब एक्स इंटीजर नहीं होता है तब हम एरर को ट्रिगर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक्स में एक स्ट्रिंग असाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर टाइप ऑफ एक्स नहीं है इंटीजर के बराबर, मतलब कि एक्स जो है वो इंटीजर नहीं है, तो हम यहाँ पे रेज कर रहे हैं और यहाँ पे टाइप एरर में हम कस्टम मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को। प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं और क्योंकि एक्स एक इंटीजर नहीं है तो यहाँ पर ये एरर जो हमने कस्टम मैसेज प्रोवाइड किया था वो यहाँ आ गया टाइप एरर में, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। सो जब मैं यहाँ पे एक इंटीजर प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि 6 एक इंटीजर है, जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ कोई एरर नहीं आती है फिर। सो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब आ जाते हैं आज के Q&A सेशन पर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और कम्युनिटी का लिंक भी ज्वाइन है, वहां से कम्युनिटी ज्वाइन करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो दिस इज अ Q&A टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can comment on this video and you can also join the community WhatsApp or Telegram group. That link is provided inside this video description and post your question there and you will get a reply. So I hope today's session is clear for you, and if you are watching on YouTube, subscribe the channel, like the video and share with those people who want to learn Python for free. अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो पाइथन को फ्री में सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।